Hello everyone, welcome to Mastura classes. This is Saima Arif here, and today we are going to start our second chapter, that is on role of the government in health. In a democracy, people expect the government to work for their welfare. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. So in this chapter, we will examine the meanings and problems or related to our health, what government plays an important role to maintain our health. So what is health? We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries, but health is not only about diseases. You may have associated only some of the situation in above college with health. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food or to eat, or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. सो इफ़ वी थिंक अबाउट द हेल्थ, अगर हम हेल्थ के बारे में सोचें तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हेल्थ मीन्स की एक ऐसी एबिलिटी होती है हमारे अंदर की जो कि मीन्स कि अगर हम हेल्थ के बारे में सोचें कि एक ऐसी एबिलिटी जो इलनेस से, बीमारी से फ्री हो, इंजरी से फ्री हो, तो हम सेहत उसको बोलते हैं. लेकिन हेल्थ का मतलब इतना ही नहीं है कि मीन्स कि फ्री फ्रॉम डिजीज, फ्री फ्रॉम इलनेस, फ्री फ्रॉम इंजरीज. नो, अगर हम अपार्ट फ्रॉम डिजीज, अगर हम ये सोचें कि अगर कुछ ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइक कि फॉर एग्जांपल अगर एक मतलब कि इफ़ पीपल जो है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहे, तो दे आर लाइकली टू बी हेल्दी एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु डू नॉट गेट एडवोकेट अमाउंट ऑफ फूड और टू ईट और टू लिव हैव टू क्रैम्पन कंडीशंस. तो इससे क्या होता है कि दे आर वेरी प्रोन टू illness. All of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. तो हम क्या चाहते हैं? हम everyone is मतलब एवरीवन इज़ लाइकिंग दैट कि हम हर किसी चीज़ में एक्टिव रहे. वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, वी मस्ट बी एक्टिव इन एवरी activity. It is not healthy to be dull, inactive, anxious, or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. It is not only about the what disease, inacuity and ये anxious वगैरह ना. हमें क्या रहना चाहिए? हमें जो हमारा जो जहनी दबाव है उससे भी हमें फ्री रहना चाहिए. All of these various aspects of our lives are a part of our health. ये सारे जो aspects है, ये क्या है? ये part है health के. Healthcare in India. Let us examine of some of these aspects of healthcare in India. Compare. तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है. ये यहाँ पर एग्जामिन करना है कि हमारे इंडिया में कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं या कितने ऐसे मतलब जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया है हमारे हेल्थ को लेके. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज among the largest producers of doctor. Approximately 15,000 new doctors qualify everywhere. तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे बॉक्स है उसमें क्या लिखा है? जो इंडिया है, ये इसमें इंडिया जो है ये पूरी दुनिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज माना जाता है. यहाँ पर हर साल 15,000 से जो डॉक्टर्स है वो क्वालिफाई होते हैं. मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज. पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर. तो जो मोस्ट ऑफ जो डॉक्टर्स है वो कहाँ पर सेटल है? अर्बन एरिया. जो रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं उनको बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है टू रीच अ doctor. The number of doctor with respect to the population is much less in rural areas. Healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950 से लेकर अगर हम बात करें, there were only 2,717 hospital in India 1950 में. अब 1991 की अगर हम बात करें, there were 11,174 hospitals. In 2000 the number grew to 18,218 तक जो ये है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, ये हॉस्पिटल्स है, ये ग्रो हुए हैं. अबाउट 5 लाख पीपल जो है डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरीवेयर. अगर इंडिया की बात करें हम, बिकॉज वी आर रीडिंग अबाउट द इंडिया आवर कंट्री, तो 5 लाख जो लोग हैं वो हर साल मरते हैं फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस. दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस. ठीक, ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरीवेयर एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग.
हर साल अगर हम देखें 2 मिलियन केसेस आते हैं मलेरिया के, और अगर हम इनके नंबर्स की बात करें ये डिक्रीज नहीं होते हैं बल्कि ये इंक्रीज होते जाते हैं। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मनी कंट्री। जो इंडिया जो है वो एक लार्ज नंबर है मेडिकल टूरिस्ट, मीन्स कि बहुत सारे कंट्री से यहाँ पे डॉक्टर आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर हम देखें पूरी दुनिया में जो है बहुत सारी जो कंट्रीज हैं हमारे, वहाँ से जो लोग आते हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उनको क्या नाम दिया गया है, मेडिकल टूरिस्ट। ठीक, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बोर्न, फॉर एग्जाम्पल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एक्स्ट्रा। अगर हम देखें जो ये हमारी जो गवर्नमेंट है तो वो क्या, दे आर फेल टू प्रोवाइड अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं होते, जिससे क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स कि एक से दूसरे को हो जाना, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज। और सबसे ज्यादा अगर हम देखें कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होती, दैट इज वाटर बोर्न, मीन्स कि वाटर से, पानी से होते। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी है बीमारी की, दैट इज डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एक्स्ट्रा। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। जो इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, और अगर हम देखे जाए कि इंडिया से बहुत सारे जो मेडिसिन हैं वो एक्सपोर्ट भी होते हैं। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। अगर हम देखें इंडिया में आधे से ज़्यादा जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, उनको एडवोकेट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलता है, जिनकी वजह से वो अंडर नरिश्ड है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी सच एज हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, लेबॉर्ट्रीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक्स एक्स्ट्रा। अगर हम देखें, हम इन सब चीज़ों को जो अपने एबो टेबल में पढ़े हमारी इलनेसेस के बारे में, अगर हमें इनको प्रिवेंट करना है, अगर हमें ट्रीट करना है इन इलनेस को, तो हमें अप्रोप्रिएट क्या चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, जो हमें हेल्थ सेंटर्स में हॉस्पिटल्स खोलने, लेबॉर्ट्रीज या टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस की, मीन्स की सारी जो सर्विसेज है ये अप्रोप्रिएट अमाउंट में चलनी चाहिए। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विस दैट पेशेंट्स नीड। मीन्स कि ये जो सारी सर्विसेज है ये प्रोवाइड हो एक पेशेंट को कि उनके अपने अच्छे वक्त पे। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स। ये सारी फैसिलिटीज़ चलाने के लिए, रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड हेल्थ वर्कर्स। हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है, नर्सेज की ज़रूरत है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। और हेल्थ प्रोफेशनल जो हेल्थ में महारत रखते हैं, उन सारी चीज़ों लोगों की हमें ज़रूरत है जो कि हम एडवाइस करें, डायग्नोज करें और ट्रीट करें हमारी इलनेस को। India has a large number of doctors, clinics and hospitals. जो इंडिया है, as we know that India is a large number of doctors इंडिया में है, clinics है और hospitals है. The country also has considerable experience and knowledge in running a public health care system. जो ये country है ये consider की गई है कि इस कंट्री में, इंडिया के कंट्री में यह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है कि एक पब्लिक हेल्थ केयर को, सिस्टम को कैसे रन किया जाए। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। और जो ये सिस्टम है हॉस्पिटल्स है या हेल्थ केयर सेंटर्स ले ले आप, तो ये सारे जो रन कौन करता है, बाय द गवर्नमेंट। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। तो ये जो गवर्नमेंट है ये लुक आफ्टर करती है हमारे हेल्थ सेंटर्स को, हमारे हॉस्पिटल्स को, थ्रू गवर्नमेंट इट इज provided by all. We will go into the more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment producer are available in the country. अगर हम देखें हमारे जो कंट्री में मेडिकल साइंस का और नई नई जो टेक्नोलॉजी का और नई नई ट्रीटमेंट्स का क्या है, प्रोड्यूस हुए हैं और ये अवेलेबल है हमारी कंट्री में. However, the second column point is that out how poor the health situation in
आवर कंट्रीज। अगर हम देखें जो हमारा जो सेकंड कॉलम था जो कि हमने पढ़ा कि जो हाफ से ज़्यादा बच्चे हैं उनको एडवोकेट अमाउंट ऑफ वोट नहीं मिलता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गरीब है। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल। अगर हम फर्स्ट कॉलम में देखेंगे कि कितने सारे 15,000 जो है हमारे जो डॉक्टर्स है वो एवरीवेयर क्वालिफाई होके निकलते हैं, लेकिन स्टिल वी आर लैकिंग समवेयर। दिस इज द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज contrary to what we would accept. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all. हमारे कंट्री में पैसा भी है, नॉलेज भी है, लोग भी है, विद एक्सपीरियंस है, बट कैनॉट मेक द नेसेसरी, मगर कि ज़रूरी भी ही बनाते हैं कि हेल्थ केयर जो है वो हर जगह अवेलेबल हो। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द सम ऑफ द रीजन फॉर दिस। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन से ऐसे वजूहात है। The story of Hakim Sheikh. Hakim Sheikh was a member of the Pachim Banga Khed Mazdoor Samiti. ये एक organization है वेस्ट बंगाल की। One evening in 1992, he accidentally fell off a running train and suffered head injuries. तो 1992 में क्या होता है, ये accidentally means कि ट्रेन से गिर जाते हैं और इनकी जो सर पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट आती है। ये वॉज इन वेरी सीरियस कंडीशन, नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में होते हैं हाकिम शेख और इनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कलकत्ता बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव स्पेयर बेड। तो इनको कहाँ ले जाते हैं, इनको कोलकाता के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज वहाँ पे उनके पास कोई खाली बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। जो दूसरे हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं था और वो फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट एंड वाज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। तो 14 आवर्स इनको ये क्रिटिकल स्टेटमेंट के साथ थे, क्रिटिकल उसके साथ थे, लेकिन अगर हम देखें इनको 8 डिफरेंट गवर्नमेंट्स के पास ले जाया, हॉस्पिटल के पास ले गए, लेकिन किसी ने भी इनको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वाज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो फाइनली इनको कहाँ पर एडमिट किया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, जहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट हुई। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। तो इसको मतलब कि जब इनको प्राइवेट हॉस्पिटल लिया गया, इट इज़ ओबियस कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मनी है उन पे स्पेंड हुआ। Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. तो फिर ये एक केस कहाँ पे जाता है, कोर्ट में जाता है। The cost of a care. Aman and Ranjan are good friends. While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet. So here is a story of Aman and Rajan. You will read it yourself. We will come to the topic. Okay. Public and private healthcare survey. From the above story, you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facilities in 2 categories. Firstly, the public health service and the second is private health facilities. इनको नाम से ही पता चलता है कि public for the ये पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए और प्राइवेटली। पब्लिक हेल्थ सर्विस, द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सर्विस का मतलब हो गया कि वो ऐसी सर्विस जो कि रन की जाए बाय द गवर्नमेंट। दे आर लिंक टुगेदर सो दैट कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। तो ये क्या होता है, जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है, दे आर लिंक मीन्स कि ये लिंक होता है गवर्नमेंट से। क्यों होता है लिंक, क्योंकि दोनों का ख्याल रखा जाए, रूरल का भी मतलब शहर का भी और विलेज का भी। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस, मतलब कॉमन इलनेस से लेकर स्पेशल सर्विस तक जो ये पब्लिक हेल्थ सर्विस है ये जो रन करते हैं बाय द गवर्नमेंट। एट द विलेज लेवल दे आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज अ यूजुअली अ नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। दे आर ट्रेनड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC. Such a center covers many village in a rural area. At the district level is the district hospital that also supervises all the health center. Large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken
taken and also specialized government hospitals such as the ones in Hakim Sheikh story. देखिए अगर हम देखें यहाँ पे कि जो ये पब्लिक हेल्थ सर्विस है, पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है ये लिंक्ड होता है गवर्नमेंट से, ये बाय गवर्नमेंट रन होता है। तो अगर हम देखें तो ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है ये दोनों के लिए है, फॉर द अर्बन एंड फॉर द रूरल। अगर हम देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो यहाँ के जो सारे डॉक्टर्स हैं ये किसके अंडर सुपरवाइज होते हैं, ये सच मीन्स कि ये किसके अंदर सुपरवाइज होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के अंडर ये सुपरविजन इनकी की जाती है। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक, जो हेल्थ सर्विस है उनको क्या कहा जाता है, पब्लिक, फॉर मनी रीजन इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल citizens. The government has established these hospitals and health centers. Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that with the public pay to the government as taxes. जो ये जो health service जो है जो public के लिए बनाई जाती है ये रन तो बाय द गवर्नमेंट ही होता है, लेकिन ये चलता है किन के रिसोर्सेज से, ये हमारे रिसोर्स की जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं बाय थ्रू दिस, ये जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो भी ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं या लिंक होते हैं उनसे, तो ये हमारे टैक्सेस की वजह से रन होते हैं। सच फैसिलिटीज आर मेंट फॉर एवरीवन, और जो ये जो फैसिलिटीज़ है ये हर किसी के लिए होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट it is meant for to provide quality healthcare service either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment. जो ये public health ये जो sector है ये किस लिए बनाया गया, ये बहुत ज़रूरी एक aspect है public health system का कि ये बनाया गया है कि ऐसी quality provide करे, ऐसे health care services provide करे या हम free provide करें, either free या means कि बहुत ही low cost में, जो कि बेचारा गरीब से गरीब भी अपना treatment वहाँ पे अच्छे से करा सके। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera. और जो ये health functions हैं ये health public health ये जो है ये is to take action, और इनको मीन्स कि ये एक्शन भी टेक करते हैं तो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। कौन सी जो डिजीजेस है जो स्प्रेड होती है जस्ट लाइक कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस और कॉलरा। Diarrhea, chikungunya, etc. This has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective. जो ये diarrhea और chikungunya जैसे जो बीमारी है ये organize की गई थी गवर्नमेंट के थ्रू with the participation of people, otherwise it is not effective. For example, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops, etc. This has to be done for all houses in the area. जो as you know कि हर जगह जहाँ पे कैंपेन्स लगते हैं, जो ये कैंपेन होती है ये क्या ये नोटिस करती है, ये नोटिस करती है कि इस विलेज में इस एरिया में कहाँ क्या ये मीन्स कि कौन सी डिजीज़ है या कौन से चिल्ड्रंस या कौन से बड़े जो कौन से लोग हैं जिनको कौन सी डिजीज़ हुई है, तो ये उन्हीं के क्या करते हैं, ये जो कैंपेन है ये उनको क्या करते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं इन सारी बीमारियों से और उनको बताते हैं ये इनको कहते हैं कि जस्ट लाइक कि जैसे कि मॉस्किटोज़ है जब कि वो पानी में होता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है पानी में है तो ऐसे ही ना पिया करे या अपनी सेहत का ख्याल रखे। जो ये कैंपेन्स होती है दे आर ये हमारे लिए होती है कि हमें अवेयर करते हैं इन सच अ things. Recall the case of Hakim Sheikh. Would you like to know that would you like to know what the court said in this case? As I told you अर्लियर दैट कि जो हकीम शेख का केस है वो कोर्ट में गया है, तो अब हम देखेंगे कि कोर्ट ने क्या कहा था उसके। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें, संविधान के अकॉर्डिंग देखें, जो ये एक प्राइमरी ड्यूटी होती है हमारे गवर्नमेंट की कि ये इंश्योर करे कि हमारी जो हेल्थ की वेलफेयर है या हमारे जो लोग हैं जो ये हमारे जो हॉस्पिटल्स है ये यहाँ पर फैसिलिटीज़ मीन्स की प्रोवाइड हो रही भी है कि नहीं। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस could have
cost him his life. If a hospital cannot provide timely medical treatment or person, it means that this protection of life is not being given. जो गवर्नमेंट है उसको सेफ गार्ड करने चाहिए हमारे राइट टू लाइफ, हर किसी पर्सन की, जो एवरी पर्सन की जो राइट टू लाइफ है, जो है हमारा हक है, हमारे जो गवर्नमेंट है उनको ये सेफ गार्ड करना है। जो कोर्ट है उन्होंने क्या कहा, दैट द डिफिकल्टी दैट हकीम, जो ये डिफिकल्टी जो हकीम ने ली, मीन्स कि हकीम ने फेस की थी, कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, मतलब कि उसको अपनी जमा पूंजी उस पर मीन्स कि स्पेंड करनी पड़ी। इफ़ अ हॉस्पिटल कैनॉट प्रोवाइड ए टाइमली मेडिकल, तो कोर्ट ने कहा अगर कि हॉस्पिटल क्या प्रोवाइड नहीं कर सकती है टाइमली मेडिकल या ट्रीटमेंट पर्सन को, इसका मतलब है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे राइट टू लाइफ की प्रोटेक्शन नहीं कर रही है। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो कोर्ट ने क्या कहा है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि प्रोवाइड करें उनके लिए नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज, मीन्स कि लोगों के लिए नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करें, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन, एमरजेंसी सिचुएशंस में क्या करें, ट्रीटमेंट करें। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। हकीम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे कि हमने देखा जो हकीम शेख है उनका ट्रीटमेंट बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने डिनाई किया, नहीं किया, मना किया। देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट, तो फिर जो कोर्ट है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहा कि आप जो है हकीम को अपने पैसे वापस करें जो कि इसको खर्च हुए हैं कहाँ पे, अपनी ट्रीटमेंट में। क्यों कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया, बिकॉज कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये इंश्योर करना चाहिए, उनके ये जिम्मेदारी है, सेफ गार्ड है कि हमारा जो राइट टू लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करे। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, अगर अभी तक हमने बात की पब्लिक हेल्थ सर्विस की, अब हम प्राइवेट हेल्थ सर्विस की बात करेंगे। दिस इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। जो ये प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी है, एक प्राइवेट फैसिलिटी होती है जो कि हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में वाइड रेंज पे एग्जिस्ट करती है। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स, बहुत सारे जो है लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट क्लिनिक्स अपने मीन्स कि वो रन करते हैं अपने आप, मीन्स कि प्राइवेट क्लिनिक्स रन करते हैं। इन द रूरल एरियाज वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, अर्बन एरियाज हैव लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, जो अर्बन एरियाज हैं उनको लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। मनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस, उसमें जो बहुत सारे होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड, बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स है, वो प्राइवेटली ओन्ड है, मीन्स कि डॉक्टर की प्राइवेटली ओन्ड है वो। देयर आर मनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, एक्स्ट्रा। ठीक, देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन। अगर हम देखें हमारे जो इंडिया में इर्द गिर्द बहुत सारे प्राइवेट ऐसे क्लिनिक्स है जो कि डॉक्टर्स है वो खुद रन करते हैं। और पब्लिक हेल्थ सर्विस मीन्स कि जो ये लिंक होता है बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के जरिए चलता है। और चलाता कौन है, जो हमारे जो टैक्सेस जो आते हैं गवर्नमेंट को, थ्रू आवर टैक्सेस ही ये रन होते हैं। As the name suggests, private health facility are not owned or controlled by the government। जैसे कि अभी हमने ये प्राइवेट नाम सजेस्ट किया है, इसका मतलब ही है कि ये ओनड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट नहीं है। इसमें जो है जो डॉक्टर है वो खुद ओन करता है अपनी क्लिनिक को। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज इन प्राइवेट फैसिलिटीज, पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज। इसमें क्या होता है, प्राइवेट फैसिलिटीज में क्या होता है, जो पेशेंट्स है उनको खुद अपने ही दम पे क्या करना होता है, पैसे खर्च करने होते हैं उनको, फिर जो कोई सी भी जो सर्विस है वो यूज़ करनी हो। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटी कैन बी सीन ऑल अराउंड। अगर हम देखें प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं तो ये आज के दौर में अगर हम देखें तो हमारे हर जगह इर्द गिर्द के अगर हम देखें तो बहुत सारे प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। अगर हम देखें इनफैक्ट ऑल ऑफ दिस, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, तो हम देखेंगे बहुत सारे
सारे जो लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज हैं वो रन करती है हॉस्पिटल्स और एंगेज्ड है टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द मेडिसिन। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो मेडिकल शॉप्स हम हर किसी कोने में देखते हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इन एडवोकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। अगर हम देखें वी फेस अ सिचुएशन, अगर हम किसी सिचुएशन को फेस करें, हम देखें वेयर प्राइवेट सर्विस जो है वो इंक्रीज हो रही है बट पब्लिक सर्विस नहीं हो रही है। व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट। अगर हम देखें तो जो अगर हम देखें तो जो लोग हैं वो अवेलेबल है क्या मेनली प्राइवेट सर्विसेज के लिए। These are concentrated in urban areas as these services are run for profit. The cost of these services is rather high. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, वहाँ की जो सर्विस है उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, वहाँ की जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। मनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली। जो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, मनी पीपल जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मीन्स वो पैसे, वो एक्सपेंस, तो एक्सपेंसिव जो मेडिसिन है वो नहीं वो मीन्स की अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, वो बोरो करते हैं वो पैसे अगर उनके फैमिली में कोई इलनेस होती है। इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी दीज प्राइवेट सर्विस एनकरेज प्रैक्टिसेस दैट आर इनकरेक्ट एट टाइम्स चीपर मेथड्स दो अवेलेबल आर नॉट यूज। तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट सर्विस में चीपर मेथड्स मीन्स कि सस्ते मेथड्स या अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ कॉमन टू फाइंड डॉक्टर प्रेस्क्राइब अननेसेसरी मेडिसिन इंजेक्शन और सेल इन बॉटल्स। जो इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर्स है वो अननेसेसरी ज़्यादा मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, सेल इन बॉटल्स देते हैं, व्हेन टैबलेट्स और सिंपल मेडिसिन कैन सफिशिएंट। अगर हम देखें कि कुछ टैबलेट्स से और थोड़ी सी मेडिसिन से वो बंदा ठीक हो सकता है, पेशेंट ठीक हो सकता है, बट नहीं जो ये प्राइवेट सर्विसेज है ये इन सब चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। इनफैक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट they required during an illness। अगर हम देखें इंडिया में जो ऐसे मतलब 20% ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, बट 80% इज नॉट डूइंग दैट। हैंस इवन फॉर दोज whom one might not think as being poor medical expenses causes hardship। मेडिकल जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही हार्डशिप है। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses। तो ये मीन्स की रिपोर्ट किया गया, स्टडी की गई है इंडिया मीन्स की सारे प्राइवेट इस पे कि 40% जो है पीपल जब वो एडमिट होते हैं और हॉस्पिटल में, तो वो क्या करते हैं, या तो वो पैसे बोरो करते हैं या वो कुछ ऐसी चीज़ जो है वो सेल करते हैं अपने ये एक्सपेंसेस के लिए जो कि उनको वहाँ पे एडमिट करने होते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इन अ काज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। फॉर दोज हु आर पुअर मतलब कि उन लोगों के लिए जो बहुत गरीब है, एवरी इलनेस उनके लिए हर कोई बीमारी वो एक क्या बनती है, काज बनती है बहुत एक ग्रेट एंजाइटी का और डिस्ट्रेस का। What is worse is that this situation tends to happen again and again. Those who are poor are in the first place undernourished. These families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, cleaning, surrounding, etc. and therefore are more likely to fall ill. The expenses or illness make their situation even worse. जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, अगर उनकी फैमिली में एक छोटी सी इलनेस भी होती है, उसको वो किसका काज बन जाती है, एंजाइटी और डिस्ट्रेस का। तो उनकी जो सिचुएशन होती है वो मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, ठीक है। और जो गरीब लोग होते हैं वो अंडर नरिश्ड होते हैं क्योंकि उनकी जो फैमिली होती है उनके पास एडवोकेट अमाउंट ऑफ फूड नहीं होता है, उनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है, एडवोकेट हाउसिंग नहीं होती, क्लीन सराउंडिंग्स नहीं होती। एज वी ऑल नो कि जो पुअर है वो बेचारे दे यूजुअली लिव इन द स्लम्स एरियाज। और जो स्लम एरियाज है मतलब कि झूपड़पट्टी में जहाँ पर वो रहते हैं वो मीन्स कि एक गार्बेज की साइड्स में रहते हैं, वहाँ उनकी जो वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम है वो ओपन होती है, जहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज बीज वगैरह जो होती है वो उधर होती है और फिर वो उनके खाने पे बैठती है और जो वो खाना लेते हैं वो उनसे बीमार हो जाते हैं।
Sometimes it is not only the lack of the money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a proper manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. So यहाँ पर अगेन द स्टीरियोटाइप कि अगर हम देखें जो वुमेन है, फॉर एग्जांपल इन्होंने वुमेन के लिए है कि वुमेन की जो सेहत है, औरत की जो सेहत है वो मीन्स कि वो कंसिडर नहीं की जाती है इतनी इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द मैन इन द फैमिली. मनी ट्राइबल एरियाज have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. तो क्या होता है, जो ये गरीब होते हैं, ये जो ऐसे लोग होते हैं, उनके लिए जो प्राइवेट हेल्थ सर्विस भी अवेलेबल नहीं होती है. What can be done? There is little doubt that the health situation of most people in our country is not good. अगर हम देखें यहाँ पर फिर भी छोटा सा डाउट रह जाता है कि हमारी जो कंट्री में है, लोगों की जो सेहत है, लोगों की जो हेल्थ सिचुएशन है, वो अभी भी ठीक नहीं है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. तो हर ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट की आती है, अगर वो प्रोवाइड करें हमारे पास क्लीन सराउंडिंग्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एडवोकेट अमाउंट ऑफ द फूड, पुअर को भी या अर्बन एरियाज, रूरल एरिया, हर किसी को. तो ये मीन्स कि जो गवर्नमेंट है, ये इनका काम होता है कि ये हमारे हम जो लोग हैं, पुअर जो लोग हैं, उनके लिए क्या मीन्स कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स है जो कि इनको करनी चाहिए. However, health is as much dependent on the basic amenities and social conditions of the people as it is on healthcare service. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our family. So, in nutshell, जो हमारा जो गवर्नमेंट है, उनको ये उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है how they look after our health. The Kerala experience. In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 1996 में क्या होता है, जो केरला की गवर्नमेंट है वो कुछ मेजर चेंजेस करती है स्टेट में. 40% जो ऑफ द एंटायर स्टेट है का जो बजट है वाज गिवन टू द पंचायत, वो पंचायत को दिया जाता है. दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, मीन्स कि वो प्लान करती है और प्रोवाइड करते हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स टू देयर विलेज. दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. 40% क्या है, वो 40% जो बजट है वो पंचायत को इसलिए दिया जाता है कि वो एक प्रॉपर प्लान प्रोवाइड करे और रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करे किन के लिए, उन गांव वालों के लिए, और मेक श्योर करे कि वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ क्या हो, वाटर प्रोवाइड हो, फूड प्रोवाइड हो, डेवलपमेंट हो, और वुमेन की एजुकेशन की डेवलपमेंट हो. This meant that water supply schemes were checked. The working of schools and Anganwadis was ensured and specific problems of the village were taken up. जो केरला की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या ये लिया कि मीन्स की जो ये पंचायत है, पंचायत को उन्होंने 40% ये दिया कि ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो हम लाए, और कौन से मीन्स के आंगनवाड़ी जो सेंटर्स है उनको इंश्योर किया कि बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करे, उनको रिकॉग्नाइज करे और उन पे एक्शंस ले. हेल्थ सेंटर्स वेर आल्सो इम्प्रूव्ड. ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन. तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, जो ये मीन्स कि इन्होंने ये इन सारे इनिशिएटिव्स ने क्या किया, हेल्प किया टू इम्प्रूव द सिचुएशन. डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, हाउएवर, सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, insufficient hospital beds, not enough doctors remained, and these needed to be addressed. The Costa Rican approach. Costa Rica is considered to be one of the healthiest countries in South Africa. ठीक, ये जो कोस्टा रिका है ये कंसिडर की जाती हेल्दीस्ट कंट्रीज में इन साउथ अमेरिका में. द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन. ये कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया था साउथ अमेरिका ने सेवरल ईयर्स एगो. कुछ साल पहले कोस्टा रिका जो है took a very important decision and decided to not to have any army. This helped the Costa Rican government to spend the money that army would have used on health. जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया. इन्होंने बोला कि जो हम वहाँ की जो गवर्नमेंट है टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव, जो आर्मी है वहाँ की, उन्होंने उस पर उनको पैसा दिया, स्पेंड किया, उन पर पैसा खर्च किया. तो और उनको क्या इंश्योर किया ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल. मीन्स कि हेल्थ पे और एजुकेशन
एजुकेशन है और भी जो बेसिक नीड्स है लोगों की उनको फुलफिल करे और उनको रिकॉग्नाइज करे। तो कोस्टा रिकन जो गवर्नमेंट है बिलीव्स दैट द कंट्री हैज़ टू बी हेल्थी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड प्लेज अ लॉट ऑफ अटेंशन और टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। जो कोस्टा रिकन की जो गवर्नमेंट है वो बिलीव करती थी, वो ये यकीन रखती थी जो कंट्री है वो तभी डेवलप हो सकती है जब उसकी कंट्री क्या हो, हेल्दी हो। द कोस्टा रिकन जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने प्रोवाइड किए बेसिक्स कुछ ऐसे एमिनिटीज़ अपनी कोस्टा रिकन रीजन में। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग, जैसे कि उन्होंने सेफ ड्रिंकिंग, सैनिटेशन या न्यूट्रिशन या हाउसिंग जो है ये प्रोवाइड किए कहाँ की, कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने। हेल्थ एजुकेशन इज आल्सो कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन एट आल लेवल्स। जो एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ के बारे में आगाह करना लोगों को, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है हेल्थ के बारे में, और ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारे एजुकेशन का एट ऑल लेवल। सो हेयर इज चैप्टर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।